آج صبح خدا کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں. تھرسڈے جمعرات کو ہم نے عید سعود سیلیبریٹ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ مسیحی ایمان میں 4 فیسٹ 4 ایسی عیدیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے عید ولادت المسیح، یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، اس کا ظاہر ہونا، اور پھر اس کے بعد عید قیامت المسیح، یسوع مسیح مردوں میں سے، اور پھر اس کے بعد عید سعود جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے. اور میرے پچھلے میسیج میں 40 کا جو عدد ہے میں نے اس کو زیادہ فوکس کیا تھا. ایک تحقیق کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر کسی چیز کو آپ نے اپنانا ہے تو اس کے لیے 40 ڈیز بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اگر کسی چیز کو ترک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی 40 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، ان سے ملاقات کرتا رہا. اس میں نے 4 چیزیں بیان کی تھی. وہ ریجنریشن کا کام کر رہا تھا، نئے طور پر ان کی لائف میں کام ہو رہا تھا. تو اس لیے ہمیں ان عیدوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آج میں نے بھائی آصف سے کہا کہ ہم ہولی اسپرٹ کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں گیت گائیں گے. مسیحی ایمان ہمیں سکھاتا ہے باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ازلی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، اور تینوں الہی ذات ہیں. تینوں الہی ذات ہیں. ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے. آج کی جو تلاوت ہے وہ اعمال کی کتاب میں سے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تھیولوجین کہتے ہیں کہ یہ گو اس کا ٹائٹل رسولوں کے اعمال ہے، لیکن یہ ایکٹس آف ہولی اسپرٹ ہے، پاک روح کے اعمال ہے. رسولوں پر روح القدس نازل ہوا اور وہ قوت سے بھر گئے، اور پھر ان کے وسیلہ سے مفوق الفطرت سپر نیچرل کام ہوئے ہیں. اور اگر آج کا چرچ، اگر آج کی کلیسیائیں، اگر آج کے ایماندار اس لیول پر آ جائیں کہ وہ اپنے چرچ، اپنی کلیسیا کو اعمال کے چرچ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے، کیونکہ آج کا چرچ بھول چکا ہے. آج دنیا میں دیکھیں کہ کتنے چرچز ہیں جنہوں نے روح القدس کا متبادل ڈھونڈ لیا. انٹرٹینمنٹ چرچز میں، انٹرٹیننگ ورشپ، انٹرٹیننگ عبادات، ایون انٹرٹیننگ کروسڈ بھی ہو چکے ہیں. اس میں ایسے لوگوں کو، ایسے سنگرز کو بلاتے ہیں جس سے لوگ ذرا تعداد بہتے آ جان، انٹرٹینمنٹ لگ رہا ہے. لیکن جب چرچ، کلیسیا، ایماندار اعمال کی کتاب کی کلیسیا کے معیار کے مطابق ہوں گے، ان کی خدمت مؤثر ہو جائے گی. جیسے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا، آج کا ایماندار مصروف تو ہو گیا ہے، موبائل کی وجہ سے غیر مؤثر بھی ہو گیا ہے. منادی زیادہ ہو گئی ہے، اثر کٹ ہے. منادی بہت ہو رہی ہے، کلام بہت سنایا جا رہا ہے، لیکن روحیں کم بچ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری منسٹری میں روح القدس کا عمل دخل ہی نہیں ہے. رسولوں کے مال پہلے باب کی 4، 5 اور پھر 8 آیت پڑھیں گے. 4 آیت پڑھیے جی. خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے جی، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت. آمین، ہیلیلویا. نوٹ فرما لیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. میرے ساتھ کہیں، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. پانی کا بپتسمہ تو کوئی بھی پاسٹر آپ کو دے سکتا ہے. آپ کا پاسٹر
जिस चर्च में आप जाते हैं या किसी और पास्टर से आप पानी का बपतिस्मा किसी भी गहरे पानी में आप ले सकते हैं, जहां पर आपको डुबकी दी जा सके, आपको डुबोया जा सके, आप नीचे जाएं पानी के और फिर ऊपर आ जाएं। ये कोई भी कर सकता है, लेकिन पाक रूह का बपतिस्मा कोई पास्टर नहीं दे सकता। पाक रूह का बपतिस्मा एक ही देता है, एक ही खादम है, एक ही हस्ती है, और उसका नाम यीशु है। और ये जो आयत तिलावत की गई है, ये चौथी आयत, ये स्टेटमेंट है खुदाबंद यीशु मसीह की। उनको मिलकर हुक्म दिया, जैसे पानी के बपतिस्मे का हुक्म है ना, उसी तरह पाक रूह के बपतिस्मे का भी हुक्म है। ये कोई ताड़ी मर्जी नहीं कि तुसी पाक रूह दा बपतिस्मा तानू होवे ते भावें ना होवे, ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, ये हुक्म है। जैसे पानी का बपतिस्मा हुक्मन है, हुक्म है, उसी तरह पाक रूह का बपतिस्मा भी हुक्म के तौर पर है। भाई आसिफ भी मोटिवेशन दे रहे थे कि खुदा जो वादा करता है ना उसको पूरा करता है, क्योंकि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा सच्चा है, वो सादिकुल कौल है, और जो वो वादा करता है उसको पूरा भी करता है। देखो एक कंवारी, ये वादा था ना खुदा का, तो फिर हुई मुकद्दसा मरियम। मदर्स डे पर मैंने मुकद्दसा मरियम की शख्सियत के बारे में तालीम दी थी कि वो कैसी मां थी। खुदा जो वादा करता है उसको पूरा करता है। जब उसने कहा कंवारी हामला होगी, तो ऐसा ही हुआ, बेटा जनेगी, बेटा ही पैदा हुआ। उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। ऐसा ही हुआ। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसके बारे में नबी पेशन गोइयां करते रहे कि वो मसलूब किया जाएगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिर वो मसलूब हुआ, और फिर वो दफन हुआ, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जैसा कि गुजरी जुमेरात हमने ईद सऊद सेलिब्रेट की है, वो आसमान पर चला गया, और उसने वादा किया कि तुम रूहुल कुद्स पाओगे, रूहुल कुद्स नाजिल होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। रसूल खुदा के वादे के लिए रुके रहे, क्योंकि रसूलों ने उसके वादे का यकीन किया। क्या किया? हमारी एक ही प्रॉब्लम है ना कि हम कहते तो हैं खुदा 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 खुदा, लेकिन उसके वादों पर और उसके कलाम पर यकीन नहीं हम करते। मैंने अपनी एक मैसेज में ये बात सिखाई थी कि आज सबसे जो बड़ी जंग आप लड़ रहे हैं ना, वो ये है कि मैं अपने लिए बेहतर कर सकता हूं। पता है आपको, आपकी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो यही है कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर कर सकता हूं। हम खुदा की मर्जी से निकल जाते हैं, और सम टाइम हम खुदा से भी लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन रसूलों ने खुदा के वादे का यकीन किया और वो ठहरे रहे। अच्छा, एक और चीज बड़ी खास है, उन्होंने ये नहीं किया कि अच्छा कोई गल नहीं, पूरा करेगा वादा। वो खुदा है जिवें असीं कहते रहने, करेगा कोई गल नहीं, वो ठहरे सन, करेगा तो है ही, लेकिन वो रुके सन इस गल नहीं, ओदी गल पूरी होने तक रुके रहे। नहीं, उन्हें बाहर नहीं जाना, मिनिस्ट्री नहीं शुरू करनी, खिदमत के लिए नहीं निकलना। आज आप देखें कितने लोग हैं कि अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर देंगे ने, ना वो खुदा नूं पुछदे ने ते ना खुदा दे खादमां नूं पुछदे। जेड़ा जुनून उन्हां ते सवार हुंदा है ना, दौरा पैंदा है। जिवें कईयां नूं दुआ दा दौरा पैंदा, कईयां नूं मिनिस्ट्री दा भी दौरा पैंदा है। वो जदों दौरा जिन्नी देर पिया रहिंदा है, उन्नी देर वो तुहानूं खिदमत च नजर आंदे ने। उस जदों दौरा मुक जांदा, फिर मिनिस्ट्री भी फिनिश। अब इन्होंने क्या किया है, ये रुक गए हैं। पहला प्रिंसिपल, अगर आप खुदा का वादा चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पूरा हो, तो आपको ठहरना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। ये पहला प्रिंसिपल है। रसूलों ने खुदा के वादे का यकीन किया और ठहर गए बालाखाना में। मैं इसके बारे में नोट कर रहा था कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है ना, ते बाहर दरख्तां दा एक पत्ता भी नहीं टूटा। ऐ गौर करो जरा, ऐ जिहड़ी मैं गल करन लगा बड़ी गौर तलब है। जो इर्द गिर्द दरख्त थे, घर थे, किसी दी प्याली भी नहीं टूटी, लेकिन ये बालाखाना हिलन दिया सी। ऐ जरा गौर तलब गल है, क्योंकि बाकी जेड़े सन ना, वो खुदा दे वादे दे इंतजार च नहीं सन। ये जिहड़ी जुम्बश है ना, ये जिहड़ी कुदरत है, ये उत्थे ही नाज़िल हुंदी जिथे उहदे वादे दा यकीन करने वाले लोग। अब
आज कलीसियाओं में रूह जुम्बश क्यों नहीं करता? क्योंकि चर्चेस के अंदर उसके वादों का यकीन करने वाले लोग नहीं रुके हुए। रूह वहां जुम्बश करता है जिस जगह पर उसके वादों का यकीन करने वाले लोग होते। और फिर वो एक कोई गल कह रहे थे 10-50 दिन ही कह लें आप, वो फिर सीख रहे थे ना ये चीजें। 40 डेज वो खुदावंद के साथ सीखते रहे और 10 दिन पे एक कोई रट्टा सी, रुलकुस दे, रुलकुस नाजल कर, रुलकुस दे, मुझे पाकरू दे, मुझे पाकरू दे, मुझे पाकरू दे। मैं बच्चों पर गौर करता हूं, आप गौर करें, आपके बच्चे जब आप उनके साथ प्रॉमिस कर देते हैं वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, वो बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं। शागिर्द भी बच्चों की तरह थे। 10 डेज 10 दिन तक वो एक ही बात कर रहे थे, एक ही रट्टा लगाया होता, एक ही रोना था, एक ही चलाना था, एक ही दुआ थी, पाकरू नाजल कर, पाकरू नाजल कर। और वो उसके वादे के मुंतजिर, मुश्ताक और ठहरे रहे और रुके रहे और फिर कुछ नाजिल हुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें बच्चों की तरह उसकी हुजूरी में दरखास्त करने की जरूरत है। एक और बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। इस वक्त ये हॉल भी भरा हुआ है, बाहर ग्राउंड भी भरी हुई है और कई लोग खड़े होंगे पीछे। कलाम में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ पास्टर रूह से मामूर होगा, वर्शिप वाला भाई रूह से मामूर होगा, पास्टर की वाइफ या पास्टर के एल्डर्स मुबशर मामूर होंगे, अद्दी कलीसिया मामूर होगी, बाकी नहीं होगी। साजिंदे नहीं होंगे, साउंड वाला नहीं होगा, या कैमरा ऑपरेटर नहीं होगा, या कंप्यूटर वाला लड़का नहीं होगा। कलाम में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन वो सब रुलकुस से भर गए। हालेलुया। वहां कितने लोग थे? 120 की जमात, और उसमें मुकद्दसा मरियम भी थी। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम हमारे खुदावंद की माँ, वो भी ठहरी रही है। हालांकि पाकरू की कुदरत से तो यीशु मसीह पैदा हुआ था, लेकिन ये कुव्वत का लिबास था जिसके लिए ठहरना जरूरी था। वो सब रुलकुस से भर गए थे। और दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है वो सब एक जगह जमा थे। और फिर ये वो लोग थे जो डरे हुए थे। इसमें रसूल भी थे और इसमें कलीसिया भी थी जो उनकी पैरवी कर रहे थे। 120 की जमात, यानी पास्टर और चर्च। लेकिन ये बात अच्छी थी कि उन्होंने वादे पर यकीन किया, और वादे पर यकीन करके वो रुक गए, वो ठहर गए। मुझे याद है इब्तदाई साल मेरी अपनी मिनिस्ट्री के, हमारे साथ जितने साथी होते थे जिनको पाकरू का बपतिस्मा नहीं हुआ था, वो रोते रहते थे। कई दिन रो रो कर दुआएं करते रहते थे। कई हफ्ते, कई दिन ये सिलसिला जारी रहता था। और जब तक वो पाकरू से मामूर नहीं हो जाते थे, वो पीछे नहीं हटते थे, बेदिल नहीं होते थे। आज आप देख लें, हम चर्च भी आते हैं, इबादत भी करते हैं, शायरबानी भी लेते हैं, सानू कोई परवाह नहीं भी सानू पाकरू दे बपतिस्मे की जरूरत है या नहीं है। अच्छा कहना चलो ठीक है, आप ही दे देगा, जेड़ी गल मैं कर रहा, वो मेहरबान है, आप ही दे देगा। जी हाँ, वो ही देता है, वही पाकरू का बपतिस्मा हमें देता है, लेकिन उसके लिए आपको ठहरना होगा। और फिर जब रुलकुस उनको मिल गया तो फिर अजीबो गरीब काम शुरू हो गए। पतरस ने कितनी बार इनकार किया? क्यों? डरता था ना कि इसके साथ मुझे भी स्लीप ना दे दी जाए। और फिर पता है बाद में पतरस को कैसे स्लीप दी गई। आप फर्क देख लें, एक जगह वो 3 बार इनकार कर रहे हैं खुदावंद का, और जब रुलकुस मिल गया तो फिर दिलेरी से कहते हैं मुझे सीधी नहीं उल्टी स्लीप दो, क्योंकि सीधी स्लीप मेरे खुदावंद ने ली थी। रुलकुस पाने के बाद अजीबो गरीब काम शुरू हो गए। पतरस जब गुजरते थे तो पतरस के साए से लोग शिफा पाते थे। वाह! अब गौर करें कि अगर रसूलों ने खुदा का यकीन किया, उसके बेटे के वादों पर यकीन किया, उसके कलाम पर यकीन किया और रुक गए और ठहरे रहे और रूह कुछ नाजिल हुआ, पाकरू उनको मिल गया, तो फिर वही पतरस जब वो गुजरता है तो बाजारों में लोग अपने मरीजों की चारपाइयां जो है रख देते थे, और पतरस का साया पड़ता था ते मरीज फिर नहीं कहना पैंदा सी टच 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 टच, फायर 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 फायर, वो टच भी हो जाता सी, फायर भी हो जाती सी, क्योंकि रुलकुस की मामूरी थी ना। वे वो धक्के देने वाली मिनिस्ट्री भी नहीं करने पैंदी, वे लोग आप ही डिगते जाते हैं।
पाखरू जब किसी को गिराता है, गिराने से मुराद स्लेन होना है, यानी खुदा पाखरू बात करता है। ये मिनिस्ट्री मौजूद है बाइबल में, कलाम फरमाता है, इसकी तालीम है। और फिर आखिरी और खास बात, ईद पेंतिकोस्त सिर्फ एक दफा नहीं मनाई गई, ये हर रोज मनाई जाती है। एस्टर मुझे आकर बताती हैं कि महाना इबादत जो बहनों की है, उसमें इतनी बहनों को पाखरू का बपतिस्मा हो गया, वो ईद पेंतिकोस्त है जिन्हों पाखरू दा उस्मा जिस दिन हो जाए। हमारी इबादत में लास्ट टाइम ये जुमे को फ्राइडे को हम द्वारोजे की मीटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने वो चटाई बिछाई होती हैं, शीट्स, तो वाइट बेड शीट्स उसके ऊपर होती हैं, पर सारे हम मिलकर दुआ करते हैं 1 से 3 बजे तक। तो इस दफा जितनी बहनों ने या जितने लोगों ने हाथ उठाया कि हमें पाखरू का बपतिस्मा नहीं हुआ, उन सबको पाखरू का बपतिस्मा हो गया। ये हर रोज इसका तजुर्बा हो सकता है। ईद पेंतिकोस्त हर रोज मनाई जा सकती है, क्योंकि जब रूह कुद्स नाज़िल होता है, आप समझ लें आप ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद पेंतिकोस्त है आपके लिए, पाखरू का बपतिस्मा हुआ है आपको। आज जो डिनोमिनेशंस हैं उनको समझ आनी शुरू हो गई है कि भाइयों दे गिरजे भरे क्यों होंदे ने, ये इसलिए होते हैं कि वहां पर पाखरू काम कर रहा होता है। ते जे मिशना दे गिरजे खाली हो रहे ने, उसकी वजह है कि उन्होंने पाखरू नजरअंदाज कर देता है। होली स्पिरिट जो है वो इंचार्ज है, वो लीड करता है। इस कलीसिया का इंचार्ज मैंने हूं, पाखरू इंचार्ज है, पाखरू इंचार्ज है। इस कलीसिया का मालिक खुदा है। ये PMI वर्शिप सेंटर में बैठे हुए लोग, आपका मालिक, आपका इंचार्ज मैं नहीं हूं, आपका इंचार्ज होली स्पिरिट है, पाखरू है। और जब पाखरू इंचार्ज होगा, पाखरू को मौका दिया जाएगा, पाखरू का बपतिस्मा होगा, पाखरू की जरूरत को महसूस करेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में खुदा सुपर नेचुरल काम करेगा। आमीन। आए चुके आज का मैसेज, हमें रूह कुद्स की जरूरत है, पाखरू की जरूरत है। पाखरू के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ईद पेंतिकोस्त का तजुर्बा हर रोज हम कर सकते हैं। हालेलुया।